It will look natural. Let your reaction should come on record. कोई नहीं, यकीन तो आप कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। उससे जो कहने वाला है ना, उसकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। नहीं कुछ नहीं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे कि देखिए मैं नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे आपको। आप चलिए आगे बढ़िए। दैट्स नॉट डिस्प्यूट। सो जो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस डायलॉग का है और लैंग्वेज का है, उसमें उसके प्रति वायलेंस हो जाता है, पर क्या वो एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, विल कम टू दैट सेपरेटली। तो जो मोदी जी की और रमेश चांद जी की जो विज़न थी, उसको कार्यरूप देने के लिए अशोक डलवई कमेटी एक बनी। मुझे पता नहीं आपके संज्ञान में है कि नहीं। आई वुड लाइक टू स्टडी दैट इफ यू आर हैविंग कॉपी ऑफ इट। वो सब मैं आपको दे दूंगा। लेट मी स्टेट इट वेरी ब्रीफली सो दैट आई कैन कम टू योर मेन पॉइंट। But before that, I am saying ki what government of India tried and what happened. Okay. So they produced a 14-volume report. Okay. I think this level of details has never been attempted in last 100 years to go into each and every aspect of farmers' problem and give a total system कि how they will solve it. 14 volumes. तो क्या मैंने जो प्रॉब्लम उस कमेटी ने लिखी है, whether I could enlist that to some extent, or you feel that nahi? Parallel. It is parallel. Why it is parallel and why it is not the same, I'll come to that later. Okay. Let me give you an overall picture first. Okay. जो जहाँ पे की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से अटकी हुई है, जो आपका सवाल है उससे भिन्न है, और जो प्रॉब्लम जहाँ पे अटकी हुई है मेरे हिसाब से वो अलग है, वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। तो जिस वक्त their report came, let us say in 2017-2018, by that time because of some political pressures, the farmers were sort of farmers leaders. They were sort of rallying together. So it was a political process going on. Or in one of the meeting, it might interest you. It so happened कि उसमें कॉर्पोरेट लोग भी बैठे हुए थे, उसमें फार्मर्स भी बैठे हुए थे, उसमें नीति आयोग वाले भी बैठे हुए थे। उसमें ये इशू आया कि everybody admits कि in their own way कि farmers have a limited vision, as you were saying, limited capacities, limited resources. तो कॉर्पोरेट वालों ने कहा कि ठीक है, we are ready to work together with them. Give us a law, a rule-based mechanism by which we can enter into mutual deal with each other. उसमें से you see these पंजाब farmers leaders, आप तो इन सब चीज़ों से परिचित हो गए कि they are mostly from left background. They are hardcore beaten communists. The beaten man is very dangerous. आप तो पुलिस में सब कुछ जानते हैं। इन्होंने सोचा कि ये तो जो है पीटने वाले में हम ही लोग तो हैं। नहीं, पर जिसको आप पीट देते हैं, तो पीट देते हैं जिसको, वो डेंजरस हो जाता है और डेंजरस हो जाता है और वो नेता भी बन जाता है। नेता भी बनता है, डेंजरस नेता बनता है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो डिजाइन है फार्मर्स की लैंड छीनने। They literally thought, they actually thought. Should I give my impression? नहीं, एक मिनट। I also feel that way. चलो anyway. ठीक, कोई नहीं, वो आपका अधिकार है। I'm trying to come to the two main points. तो वो बाहर आके उन्होंने पूरे पंजाब में हल्ला मचा दिया कि ये तो मोदी, क्योंकि एंटी मोदी, राइटली और रॉन्गली इज अ डिफरेंट, कि मोदी साहब तो पूरा आपकी ज़मीनों को छीनने की योजना बना रहे हैं। जैसे ये बात किसानों के बीच में फैली, उन्होंने जो है मोदी जी का विरोध करना शुरू कर दिया। नाउ नोबडी रेड दैट रिपोर्ट। अभी मैंने कई किसान नेता, I will be obliged if you give me that report. I would like to study it very minutely. It will probably help me to reinforce my model. Plus much more. तो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि neither they are capable of reading that report, nor are senior bureaucrats or technocrats are capable to formulate that report in a manner in which the farmers can understand. ये हमारा twin problem. There is a very deep rooted problem of communication. तो हम लोग जो कोशिश I feel there is another problem. They doubt your intent as well. वो उसके साथ है. So basically the readability is become doubtful the moment I doubt your intent, and for that the bureaucrats need to be blamed because they have become चरण सेवक. उन्होंने उनका जो अपना स्ट्रक्चर था, जिसमें आर्टिकल 9 से लेके 109 से लेके 112 तक उनको जो प्रोटेक्शन दिया गया था,
वो जिस सोच के दिशा दिया गया था वो तो उन्होंने डिफाई कर दिया। जी जी। वो अपने छोटे से लाभ के लिए, मलेदार पोस्टिंग के लिए जी। इन राजनेताओं को, जो कि एक फर्जी मशीन से निकल के आ रहे हैं, उन राजनेताओं का चरण सेवक बना के उन्होंने अपनी कैपेसिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। हाँ। और मेरी एक के सिन्हा साहब हैं जो कि फॉर्मर सिविल सर्वेंट है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी से, और इसी बात पे मेरी 2 घंटे बहस हुई। एनीवे आई नॉट वी कम टू रिलेटेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारा जो अभी प्रयास चल रहा है अच्छी साहब के साथ के, हम ये चाह रहे हैं कि किसान को पहले पता चले भी भारत सरकार ने लिखा क्या उसके बारे में, 14 वॉल्यूम लिखे हैं, उसमें है क्या, ये अभी तक उसको पता नहीं है किसान को, ना किसान के नहीं। हमारा जो कोशिश चल रही है, आप उसको यू मे और मेरा डेली विद दैट, बट आई थिंक कि देयर इज ए नीड फॉर ए ओपन फोरम, ओपन डायलॉग वेयर हम जो आपने कहा कि हम एक मिनट थोड़ा सा यहाँ इंटरवीन करना चाहेंगे। इज देयर एनी रूम फॉर द मिड कोर्स करेक्शन इन योर स्ट्रेटेजी? मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक डॉक्यूमेंट which is viewed with the suspicion, there is a lot of concrete evidence that suspicion of the farmers is not bad, it is well intended, I can prove with the वो आपका सोच है, वो आपका सोच है। नहीं, मैं सोच वाली बात नहीं कर रहा हूँ। I am saying it is not 100% wrong, that I want to say. Even the industrialists, those who are joining, they are joining for their own selfish capitalist reason, and in a way it may be a beneficial model, but somewhere the farmers are going to lose because they are losing the right of taking decisions. Decision is shifting from the farmers to the industrialist. हमें डिसीजन जो है फार्मर्स के पास लाना है, और डिसीजन मेकिंग के जो रीजंस हैं जिसको किसान नहीं सोच पा रहा है, उसको एक एल्गोरिथम के माध्यम से एज ए डिसीजन मेकिंग और फैसिलिटेशन टूल हम उनको दें। और जहां पे हमें लगता है कि किसान को हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल हमने कर लिया है, इसलिए वो ऑप्शन किसान की रडार से निकल जाए, तो वो भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। ही कैन सी, बट ही विल सी द लॉजिक आल्सो कि इस खेती में इतना जो ना हमको बोना था वो बो गया है, लिहाजा नाउ दिस सीड कैन नॉट बी सोन एनी मोर। इसमें हम बहुत सारे वो चीजें भी ले सकते हैं जो नोबडी हैज अटेम्प्टेड एंड नोबडी इज कैपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग, क्योंकि जो पेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोनोकल्चर की प्रॉब्लम है, इसके ऊपर तो किसी ने शायद दिमाग लगाया नहीं। आई डोंट नो वेदर रिपोर्ट में लगाया गया कि नहीं लगाया गया। इट इज ए voluminous report in which each and every aspect has been considered, including this calculation methodology with respect to the production, with respect to the soil, with respect to the foreign demand, everything they have considered. It is whether they could create the mechanism to do that. I am asking this question because then I will make use of that mechanism for my benefit. Let me tell you, volume 12 is just about that. No, that is no, I'm just giving you. No, I am saying they might having the methodology, whether they have created the mechanism on the ground. On the ground, no, they are not capable. मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ। तो वो बिना उसके तो फिर क्या होगा, तो फिर कहानी लिखना हो गया ना। चुप हो जाता हूँ मैं। नहीं, talking. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको ट्रांसलेट करने की मैकेनिज्म भी लाने की हमारी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी हम किसान के ऊपर नहीं छोड़ सकते। वो से इन द सेम वे इट इज द रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप तो अपने को एक स्टेक होल्डर लेके प्रेजेंट कर रहे हैं, बने तो आप भी नहीं है अभी, और यू आर ट्राइंग टू बिकम ए स्टेक होल्डर। सो पॉइंट इज कि इट इज आई एम सेइंग कि हम स्टेक होल्डर को इतना एम्पावर कर देंगे कि यदि सरकार इस लिस्ट में अलाइनमेंट में नहीं आएगी तो एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीत पाएगा। कोई नहीं, मैं वो आपकी बात में पहले सुन चुका हूँ। लेट अस ट्राई टू रिमेन ऑन द मेन पॉइंट। ओके, फेयर। दैट इज आवर प्रॉब्लम कि नहीं, मैं ये सब इनपुट इसलिए दे रहा हूँ कि जो इस कम्युनिकेशन को सुनेगा उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो विशेष सर्कल में फंसा हुआ है। आपका ध्यान उधर हो गया ना। नहीं, नो, मेरा ध्यान जो है द एंड यूजर जो उसको सुनेगा वो कहीं डिसइंटरेस्टेड ना हो जाए
कि साहब ये तो फिर वही बात हो गई कि वॉल्यूमिनस रिपोर्ट बना दी, नीचे कुछ है नहीं, हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो ऐसी वॉल्यूमिनस रिपोर्ट से फायदा क्या है जिसमें भारत सरकार की पूरी शक्ति लगी हुई हो, जिसने फार्मूला निकाल लिया हो, उस फार्मूला को जमीन पे कैलकुलेट करने का वो मैकेनिज्म नहीं बना पाए हैं। Even before I am able to state my point very briefly, it is not good to become so impatient. नहीं, I am not stop me impatient. and you start raising these objections. नहीं, I am not object. I am just giving a just to facilitate or no, it doesn't facilitate. Okay, continue. Please continue. It is a please continue. Please continue. So the point is this कि as the game is set, system is set, if the state and state's bureaucracy and state's technocracy is proposing something, it should also have the capacity to bring it to the common man कि this is what we are proposing for you. You give your feedback, we will make it corrective. ये एक minimum administrative capability है, minimum governance capability है जो हमारा सिस्टम खो चुका है. ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ. उसके एब्सेंस में जो है कुछ हो नहीं सकता. उस रिपोर्ट के और कुछ हिस्सों पे भी थोड़ा सा let me come to the main point. मैं तो मेरा काम ही है, but I want to come to your specific question which is more important. ठीक. But this is something which we have seen. नहीं, I will be benefited because I have not read that report. मैं बताऊंगा. And I will go through that report also. But since you have studied it and you are trying to take it to the public, so I think you must have learnt it by heart. So I will be benefited by your. किसान की जो बातें आपने मुझे सुनाई, ये 2025 है. 1980 में मैं 23 साल का पर्सन था और मैंने गांव में जाके ये बात वहाँ समझ ली थी मैंने 1980 में. ये सब बातें तो उसमें मैंने जाना. आई एम नॉट गोइंग टू मतलब 45 साल हमने खराब कर दिए. ये नहीं मैं क्या नहीं, देखिए एज ए यंग मैन आपने ये सब चीजें सोची थी, समझ नहीं थी, सोची नहीं थी. उन्होंने मुझे समझा दिया था किसानों ने एक एक चीज इसमें. तो आपको नहीं लगता है कि इसके सॉल्यूशंस 45 साल बहुत समय था? नहीं, मैं आपको इस पॉइंट पे आ रहा हूँ. जी, मैं ज्यादा लंबा नहीं होऊंगा. नहीं, प्लीज टेक योर टाइम. आई एम इन नो हरी. If required, then I will split it also. Let me come to the main point. So आप अपना एक मैक्रो विजन से आप अपने चल रहे हो, हर एस्पेक्ट पे आप सोचते हो. मैं जो ये सब सोच रहा हूँ उसमें पहली बात ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म निकले जिसमें कि तीसरा पक्ष आके और दोनों की बात करवाए कि भी ये हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं और ये हमारा नीति आयोग है और ये हमारे अफसर हैं और ये हमारे टेक्नोक्रेट हैं. ये बात कहना चाहते हैं आपसे. आप इसको सुनिए, अपनी राय इस पर दीजिए और वो जब अपनी राय दें तो फिर ये बैठ के विचार करें कि इन्होंने हमारे को राय दी है तो हम अपनी रिपोर्ट में क्या करेक्टिव करें. ये एक नाइसिटी है आपसे, एक शिष्टाचार है दोनों पक्षों के बीच में. जब आप कहेंगे तब मैं रिएक्ट करूँगा. कोई नहीं. ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी टूटा हुआ है. ये दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. नाउ लेट अस कम टू योर मेन पॉइंट कि आपने जो मॉडल प्रस्तुत किया है उससे मेरी सहमति है या नहीं. तो वो एक आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है. देखिए, ये उस आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन में इफ़ यू विल से यस और नो तो आई विल से नो. व्हाई आई विल से नो, आई विल कम टू दैट. लेकिन आई हैव नो राइट टू से नो. आई हैव नो राइट टू से नो. आजकल में मेरा 50 साल की ज़िंदगी के अनुभव के बाद मेरा काम है टू अवॉइड this kind of head-on collision, to avoid the confrontation of an ideological position and try to build bridge. Now having said that, why I am saying this? देखिए, जो यहाँ पे जो भी आपने बातें कही, you are talking of a planned model, you are talking of a non-market based model. जो आपका जो मॉडल है, it is a model based on economic calculation. It is based on bypassing as much as possible monetary transaction. Commodification and profit is not in the center of it. तो ये एक्सपेरिमेंट्स अनेक प्रकार से सोवियत यूनियन में हुए और चाइना में हुए. उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, उसमें मैं आपको नहीं ले आ रहा. लेकिन कुल मिला के जो दुनिया में आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिकल कम प्रैग्मेटिक बहस चली, उसमें जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक कंक्लूज़न ऑलमोस्ट ग्लोबल कंसेंसस ये निकला कि नॉन मार्केट बेस्ड मॉडल्स विल नॉट वर्क.
This whole quest of calculating and deciding by calculation and not by market is not going to work. एक मिनट, I'm just concluding. उसके बाद it is free to you. So I have some sympathy with that position कि ये जो calculations हैं in practice they will not work and you will have to leave it open. So you have to find a midway process whereby you are not completely making it profit oriented, market oriented, but not totally, straight jacketing it to another bureaucracy which is engaged in this calculation, which is engaged in these algorithms and straight jacketing everything. So we have to find a middle path, and this in its toto will not work. You have to make it worse. यही मेरे कहना। अब आप बोलिए, अगर मैं if I'm able to make any sense, आपने कुछ जोड़ना है तो जोड़िए। बेटे आपको कुछ कहना है? नहीं बोलिए, घबरा के रहिए। नहीं come over here and you can speak, you can say your end mind, जो भी कहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। you can give your views. बिल्कुल। अल्टीमेटली हमारी थ्योरी है कि यंग लोगों को बोल रहा है, हमारा तो काम कर रहा हो गया। बोलो जो भी सुना। नहीं कोई नहीं 2 मिनट बन रहा है। हाँ बोलो। एक तो मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ हमेशा से ही कि गवर्नेंस और आम जनता के बीच में कम्युनिकेशन का ठीक ठाक गैप है, और वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो आम जनता नहीं समझ पा रही है, और वो इंटेंट पे भी डाउट करती है कि मतलब जैसे हमारी भी स्टूडेंट्स की या डॉक्टर्स की, या हम जैसे आयुष वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो भी समझ बनी है ये गवर्नमेंट को लेके, उनकी पॉलिसीज़ को लेके, या आयुष डिपार्टमेंट जो भी कर रहा है उसे लेके, वो यही है कि वो हमारे विरोधी है, हमारे अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो किसानों का भी सेम ही है, और मोस्टली क्या है कि वो उस तरीके से एजुकेटेड है नहीं कि वो चीज़ें समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, या जो भी 14 वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी विस्तृत उसमें लिखा हुआ है, तो उनकी भाषा भी वैसी नहीं है कि वो जो जैसे भाषा को भी समझने के लिए जो भी ग्रामर वगैरह चाहिए वो नहीं समझते हैं वो भाषा। तो बेहतर तरीका तो यही है कि जो भी सरकार कोशिशें कर रही है उसे थोड़ी आसान भाषा में कोई एक मीडिएट, मतलब जो मध्यस्थता करे, ऐसा कोई एक पक्ष हो और वो लेके जाए अपनी बात किसानों के सामने, पढ़ के अच्छे से उसको थरली रीड करके समझ के, और उसको बोले कि किसान मतलब सरकार यही करना चाह रही है आपके लिए, और इसमें आप बता दो कि आप, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है उसने कभी प्रैक्टिकल लेवल पे काम नहीं किया होता उस तरीके से, और किसान कर रहा है प्रैक्टिकली। तो वो जैसे अगर आप एक किसान से बात करोगे या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करोगे तो उनके देखने में चीज़ों के नज़रिया एकदम अलग अलग होगा। तो किसान की बेसिक प्रॉब्लम्स सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, और सरकार जो करना चाह रही है वो किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो मध्यस्थता करने के लिए एक पक्ष की ज़रूरत तो है। हाँ जी बोलिए। देखिए बेटे, इसमें जो आप चीज़ सोच पा रहे हो, आपने एक पक्ष शासन को बना दिया, एक पक्ष किसान को बना दिया है, और अपने लिए एक मीडिएटर का, कम्युनिकेटर का, फैसिलिटेटर का रोल असाइन कर लिया है। अब मेरा कहना है कि सरकार की बात को भूल जाया जाए, सरकार की बात को पढ़ के यदि इस मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो इसी मॉडल को मॉडिफाई कर लिया जाए और फिर उस रिपोर्ट को कचड़े में फेंक दिया जाए। मतलब इफ देयर आपका भी मॉडल, हाँ, मेरा ये कहना है कि उसमें इफ एनीथिंग वी आर मिसिंग आउट, we let's incorporate those things in this model if required, and henceforth we will not speak about that report, चाहे वो 18 वॉल्यूम में हो या 25 वॉल्यूम में हो या 100 वॉल्यूम में, बिकॉज वी हैव, जो अच्छी चीज़ है वो हम एक फालतू की चीज़ को जो है ना समझाने में क्यों लगे, उसकी घटिया भाषा को हम क्यों समझाएं, हम जो किसान को उसके हित की बात बताएं। किसान का हित केवल यही है कि उसकी ऑनरशिप बनी रहे, नंबर 1, दूसरा उसका हित है कि डिसीजन मेकिंग उसके पास रहे है, और तीसरा काम है कि उसे पर्याप्त पैसा मिले। तो इस मॉडल के तहत क्या ये सब चीज़ें इंश्योर हो रही हैं? नहीं, पहले तो ये 3 के अलावा कोई चौथी चीज़ और सब किसानों को देना चाहते हैं आप? किसानों को अब वो तो अनेक प्रकार से किसान के जो प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों को भी भाड़ में जाने दो, कोई उनके ठेकेदार नहीं है, छोड़ो ना, सरकार को भाड़ में जाने दो, प्रतिनिधियों को भाड़ में जाने दो, किसान को एज इट इज, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं दे आर हैविंग देयर ओन एक्स टू ग्राइंड। अदरवाइज मेरे आने कितने जो है प्रतिनिधियों से बात हुई
वो उनको तो लग रहा है कि साहब ये हो जाएगा तो फिर तो हमारा रोल ही खत्म हो जाएगा। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि वो प्रतिनिधि बने, वो ठेकेदार बने, उन्हें जो है ना सरकार में भी हिस्सा मिले, महत्व भी मिले, ये भी मिले। दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किसान। They are representing their own vested interest for establishing themselves as a leader or strengthen their position, or if possible to even get some political advantage out of it. वो प्रतिनिधि तो किसान वो बात ठीक है आपकी। आपने पूछा किसान को और क्या। एक सेकंड, हाँ मतलब 3 पॉइंट मैंने कहे हैं। Whether I am missing out anything? वही मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ, आप पहले बोल दीजिए। ये मिसिंग आउट एनीथिंग और किसान क्या चाहता है उसके बारे में 3 पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ना फिर नहीं, अभी रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं, अभी तो किसान को भैया उसकी खेती का मालिकाना बना रहे, उसकी खेती मोस्ट एफिशिएंट तरीके से हो जाए, डिसीजन मेकिंग उसके पास बनी रहे, उसकी आमदनी 5 गुना हो जाए। वैसे तो वो नहीं कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 5 गुना हो जाए, राइट। और उसको ना तो बाजार से कोई पैसा लेना पड़े, और एट द सेम एंड हम किसानों के साथ साथ थोड़ा सा एंड यूज कंज्यूमर के लिए भी कह दें कि अभी जो किसान पैदा कर रहे हैं वो टॉक्सिक फूड ग्रेन को पैदा कर रहे हैं। हम एक जैविक और जिसमें कि जीवनवर्धक औषधियों से लेकर ढेर सारी चीज़ें मिलाकर हम एक ऐसा अन्न पैदा कर रहे हैं जो कि आम जनता की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उसके जीवन को बढ़ाएगा। और एक और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम अफोर्डेबिलिटी को हटा दे रहे हैं। तो मार्केट मैकेनिज्म तो यही होती है ना कि आपको मिल जाए और सामने वाला पैदा कर दे। ये बीच में और मार्केट फोर्सेस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट बनाने के लिए, व्हाई वी शुड टॉक अबाउट दैट। भाई जो वेस्टेज, जो बीच वाले मैकेनिज्म वाले हैं उन्हें सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस का हम पैसा दे तो रहे हैं उनको। और आज तो उन्हें ये काम करने के लिए कैपिटल लगाना पड़ रही है, क्योंकि वो खरीदते हैं, फिर उसे नेगेटिव एक्टिविटी में कहीं होल्ड कर लेते हैं, फिर उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। कई बार जो है ना उसमें पॉल्यूटेंट भी मिला देते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। सो दे आर डूइंग एन नंबर ऑफ एक्टिविटी। इस मॉडल में सबको सब कुछ मिल जा रहा है, और वी आर ब्रिंगिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो to the people, those who are not capable of affording, and without any invoking any freebie, without invoking any burden on the tax taker। तो वैसे तो टैक्स ही खत्म होने वाला है, लेकिन जब तक टैक्स वाला पैसा दे रहा है उस पर भी कोई बर्डन नहीं आ रहा, और भारत सरकार के खजाने पे भी एक पैसे का बर्डन नहीं आ रहा है। और इस जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनको कलब्रिक्स अकाउंट से पैसा आ रहा है, वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग दोज पीपल जो कि इनफ नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि हम बाद में तो जो ऑलरेडी कमा पा रहे हैं उनके भी पोटेंशियल रियलाइजेशन की बात करेंगे, लेकिन उनके पोटेंशियल रियलाइजेशन की बाद में बात करेंगे। पहले जो कमा नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे। अब इस मॉडल में मैं आपको बेटे एक और बात बताना चाहता हूं। इट इज नॉट गिविंग यू द एम्प्लॉयमेंट, इट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ योर पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जिसे ना माँ बाप ने समझने की कोशिश की, ना कभी समाज ने समझने की कोशिश की, ना किसी इंस्टीट्यूट ने समझने की कोशिश की, और वो इस डिस्टॉर्टेड मार्केट में जो कुछ करके जहां बैठा हुआ है वहां पे ही ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज पोजीशन, एंड उसमें वो जहां दुष्टता करना होती है वो दुष्टता भी कर रहा है। मतलब ही इज नॉट हैविंग एनी पायस वे। ये मॉडल जो है इज हैविंग ए एक्टिवेशन मैकेनिज्म। जैसे अज्यूम करिए कि हम कह रहे हैं कि आपके जेब में पैसे नहीं हैं और आपके पिताजी के जेब में भी पैसे नहीं हैं, और ये 5 फंडामेंटल राइट के तहत आपकी ग्रेडिंग की जाएगी, और उस ग्रेडिंग के हिसाब से देयर विल बी ऑटोमेटेड फ्लो ऑफ मनी एज एंड व्हेन यू नीड इट। मतलब आप अपने अकाउंट से पेमेंट करिए, यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कलब्रिक्स अकाउंट से आ जाएगा विदाउट एनी डिमांड, राइट। अब आप कलब्रिक्स अकाउंट का पे नहीं कर पा रहे हैं तो कलब्रिक्स अकाउंट को मालूम पड़ रहा है कि आप कमा नहीं पा रहे हो, और आप कमा नहीं पा रहे हो ये कोई दूसरा तरीका है नहीं, क्योंकि पेपर करेंसी को बंद कर देंगे। देयर विल बी ओनली डिजिटल करेंसी। आपको यदि क्रिप्टो करेंसी से कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वी विल हैव ए डिफरेंट डायलॉग ऑन दैट। सो इन द प्रोसेस कलब्रिक्स अकाउंट को यह मालूम पड़ रहा है कि डॉक्टर आकांक्षा है, इनके हमें लगातार पैसा फ्लो हो रहा है फॉर कैटरिंग द 5 फंडामेंटल राइट टू गिवन टू एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग डॉक्टर आकांक्षा। तो आकांक्षा तो कुछ कमा नहीं पा रही है,
तो ये टीम ऑफ एक्सपर्ट विल रीच आउट टू डॉक्टर आकांक्षा, और जैसे ही वो एक्सपर्ट्स को देखेंगे, डॉक्टर आकांक्षा की पहली प्रतिक्रिया होने वाली है कि भाई साहब मैं पटा दूंगी, राइट? क्योंकि वो क्या सोचेगा, यार डॉक्टर आकांक्षा की सोच क्या हो सकती है कि ये जरूर पैसे मांगने आए होंगे। तो जो टीम आएगी एक्सपर्ट्स की, दे आर वेल ट्रेंड, और उनको ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि अभी ये सोच नहीं है तो ये ट्रेनिंग की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। तो दे विल कम, दे विल से कि डॉक्टर आकांक्षा, आई हैव नॉट कम हियर फॉर आस्किंग फॉर एनी मनी, वी हैव कम टू मेक यू प्रॉस्परस, वी हैव कम हियर टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, वी हैव कम हियर टू आइडेंटिफाई द एजुकेशनल गैप। तो हम आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं, वी विल आइडेंटिफाई द मॉड्यूल्स विच आर एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू रियलाइज योर पोटेंशियल, वी आर हियर टू आइडेंटिफाई द स्किल सेट which is required for your realization of your potential. And since it is a technology driven, तो हम वो hypothetical जो है ना उस वैदिक की बात नहीं कर रहे, नया वैदिक युग होगा जिसमें हम टूल्स, टेक्नोलॉजी और इनका इफेक्टिव यूज फॉर द मैन पावर के लिए कहेंगे। जो एक अनावश्यक मेहनत है जिसको हम बचा सकते हैं, उतनी एनर्जी को बचा के हम उसको स्पिरिचुअल डायमेंशन में, हैप्पीनेस की डायमेंशन में ले जाएंगे ना, क्योंकि हमारा तो उसको मोक्ष देना भी टारगेट है, मतलब जो किसी का नहीं है। जी सुनिए एक सेकंड, लेट मी रिप्लाई फुल्ली। सो इस प्रोसेस में आपको वो शिक्षा दे दी गई, वो जो गैप है उसका स्किल सेट भर दिया गया, आपको जो टूल और टेक्नोलॉजी आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, वो ना केवल आपको दिया गया बल्कि आपको उसमें सतत अभ्यास करा के सिद्धस्त बना दिया गया है और एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे दिया। अब डॉक्टर आकांक्षा को बाजार में नहीं जाना है कि भाई साहब मैं तो कैपेबल हूं, मुझे रोजगार दे दो, राइट? तो क्या कर रहा है सिस्टम आकांक्षा से पूछ रहा है कि आकांक्षा, हैव यू सीन एनी ड्रीम? यदि आपने ड्रीम देखा है तो हम उसको रियलाइजेशन का एक राष्ट्रीय संपदा का प्रोजेक्ट बना देते हैं। और डॉक्टर आकांक्षा कहती नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो सीधी सादी हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो जो ऑलरेडी ड्रीम राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के चल रहे हैं, वहां पर विथ इन योर कंसल्टेशन यू विल बी फिट इन देयर। जो राष्ट्रीय संपदा है, आज का जो है, हमें करेंसी के बारे में थोड़ी देर विचार करना पड़ेगा। आज जो नोट जिसको आप पहचानते हैं, ये नोट कैसे छपते हैं? डू यू नो डॉक्टर आकांक्षा? नहीं, इसमें हम जो है ना इंटीग्रेट कर रहे हैं एक साथ सारी चीजें। नहीं, सारी चीजें नहीं कह रहे हैं हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है वेल थॉट एंड टू एंड सॉल्यूशन है। इसमें हर तरीके की मार्केट, हर तरीके की चीजों पर सोचा किया गया है। तो हमें हर जगह ये सिद्ध करना है कि हमें भारत सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, हमें हर जगह ये सिद्ध करना है कि टैक्स पेयर के पैसे की हमें जरूरत नहीं है, राइट? यदि टैक्स पेयर की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो भाई साहब आप हमारे तरीके के नियम कानून, हमारे तरीके की चीजें क्यों नहीं बना रहे हो? एंड यदि आप नहीं बनाओगे तो आई विल एट द कॉस्ट ऑफ इवन फर्दर डाइग्रेशन, मतलब जो अभी मैं कह रहा था दैट वाज ए डाइग्रेशन, बट आई एम सुपर डाइग्रेटिंग कि यदि जो है ये जो राजनीतिक मैकेनिज्म है, ये घटिया मैकेनिज्म है। तो कैसे घटिया है? क्योंकि जिस मशीन से राजनेता निकल रहे हैं, वो मशीन आपको अच्छा भारत देने के लिए बनी ही नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए एट द कॉस्ट ऑफ द डाइग्रेशन आई विल फिट इन एक स्मॉल मॉड्यूल जो आपको ये समझाएगा कि ये राजनेता किस मशीन के बने हुए हैं। ये उस मशीन के बने हुए हैं जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, घटिया, छोटी, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर जो है एक विनेबिलिटी देखते हैं, ये उस उम्मीदवारों में से किसको टिकट देना है इसके लिए। तो विनेबिलिटी में ये देखते हैं कि ये बाहुबली है, ये धनबली है, ये अपराधी है, एक भय कारित कर सकता है क्या, इसको ये विनेबिलिटी मानते हैं। तो पहले आपने जाति, धर्म, संप्रदाय संकीर्ण तरीके से पहले शॉर्टलिस्ट किया और करेला और नीमचड़ा बना दिया इन कॉन्सेप्ट में। फिर ये जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, तो उसमें दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदते हैं, और ये गवर्नमेंट और ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। डॉक्टर आकांक्षा, दे डोंट रिप्रेजेंट पब्लिक। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। तो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसकी डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये डेफिनेशन बैकग्राउंड में चली गई है।
Now we are not living in a democracy. We are living in a partycracy. Government of the party, by the party, for the party. ठीक है. You will grant us some minimum. एक मिनट. नहीं. इसी party. Just a minute. The digression is complete. What I intend to say, इस माइंडसेट से जो आपके राजनेता बने हैं, इस माइंडसेट से जो जीत के आए हैं, उनका सोच, चिंतन, क्षमता और शिक्षा चारों ऐसी है नहीं है जो आपको अच्छा भारत देने की हो. तो यदि इनको हम एक मॉडल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब पूरी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं और आप 240 से जो है ना 500 पार कर जाओगे, तो भाई साहब मान लो. इसको हम जो है एक कह रहे हैं कि महाभारत के 5 गांव. इसमें हम क्या मांग रहे हैं? हम इसमें मांग रहे हैं कि भैया हमें 26 टास्क फोर्स बना लेने दो, हमें पावर दे दो. जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है, लाइक डॉक्टर मित्तल एंड अदर पीपल्स, चाहे वो संत हों, चाहे साधु हों, चाहे आचार्य हों, जो भी हों, जिसने जिस विधा में अपनी एनर्जी लगाई है, उन मोतियों को हम इकट्ठा करके टास्क फोर्स बना देंगे. इन समस्याओं के लिए जो मैं मॉडल आपको बता रहा हूं और टेक्नोलॉजी ये सब बनी हुई है, और जो नहीं बनी है वो बन जाएगी, क्योंकि राइटिंग कोड इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग. आजकल तो राइटिंग कोड हैज बीन ऑटोमेटेड, तो इवन उसके लिए हमें मैन पावर की भी जरूरत नहीं है. ठीक है ना. तो अब जो है, यदि ये 26 टास्क फोर्स बना दें 21 महालक्ष्य के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए, एक हम ये चीज मांग रहे हैं इनसे. दूसरा मांग रहे हैं, हम जो ये चीज है हम किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं. मैथिली शरण गुप्त इज नॉट इम्पोजिंग हिज मॉडल ऑन एनीबडी. तो इसको रिफाइनमेंट के 4 तरीके हमने बनाए हैं. पहला है कि जो डॉक्टर मित्तल जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, जिन्होंने बचपन काल से भी ये समझने की कोशिश की कि किसानों की पीड़ा क्या है, और उस पीड़ा से वो लगभग 45 साल में जीते रहे हैं, क्या ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने ग्राउंड पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, इनको इकट्ठा करके टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाए. ये टास्क फोर्स लाइव, ये जो अपने रूम में बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, देयर विल बी लाइव डिस्कोर्स, इसको दुनिया सुनेगी, दैट विल बी टेलीकास्टेड. और इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पे जो ये डिसाइड करके जो गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे, उससे हम इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में पहली डिग्री का रिफाइनमेंट करेंगे. फिर ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने जिंदगी में तो कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तमका ले लिया है कि वो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट क्यों ना हो. तो ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट और रियल एक्सपर्ट हुसोएवर दे माइट बी, उनको मौका दिया जाएगा कि वो 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे, जिसको हर कोई दुनिया सुनेगी. उनकी चर्निंग में जो अच्छे पॉइंट निकल के आएंगे, क्योंकि हमारा सोच वो नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, हमें अपने तरफ देखना है कि क्या हमें इसमें कुछ मिल रहा है, क्या हमें कुछ मक्खन या इससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, आधा पॉइंट, पार्शियल पॉइंट, कुछ निकल रहा है क्या, उसको निकाल के हम सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट करेंगे. अब हम पब्लिक के पास जा रहे हैं. पब्लिक चूंकि फैली हुई है, ऑर्गेनाइज नहीं है, लिहाजा उसको 15 दिन में काम नहीं चलना है, उसको 45 दिन तक करना है. सभी चैनल पे लाइव डिस्कोर्स होंगे, और इन 30 दिनों की चर्चा में जिसको पब्लिक को सब कुछ झेलना है, कम से कम वो अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और छोटे मोटे 2-4 जो सलाह है उससे बन सकेगी, वो दे पाएगा. हम उसको कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट करेंगे. फिर चौथी डिग्री में यदि आज के नेता मान जाते हैं, तो जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर डिस्कोर्स करेंगे, और यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर हमारे जो चंद्रगुप्त हैं वो बाहर डिस्कोर्स करेंगे, और उनकी चर्चा में जो निकाल के आएगा वो चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, और फिर ये पार्लियामेंट में जाके पास होगा. तो हम 5 गांवों में मांग रहे हैं कि भैया जब इस प्रोसेस के तहत रिफाइन होकर जो भी चीज पहुंचे, आप उसे पास कर देना. यदि आप पास कर दोगे तो 5 गांव, हम पूरे 100 करोड़ लोग जो दूसरी प्रक्रिया से हम जुड़ रहे हैं, हम आपको सत्ता का ताज तुम्हें को ही देके रखेंगे माननीय मोदी जी, और आपको 240 से बढ़ा के 500 पार कर देंगे. क्यों? क्योंकि अच्छे भारत के लिए हमने बैक एंड प्रोसेस से हर किसी से अच्छे भारत का संकल्प दिला के 100 करोड़ पे पहुंचे. ये वेस्टेड इंटरेस्ट का यूज नहीं करेंगे, ये रियल आपका यूज करेंगे कि डॉक्टर आकांक्षा, क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं? आप तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एज एन इंडिविजुअल यू वुड लाइक टू हैव ए गुड इंडिया. ये ठेकेदारों के पास क्यों जाएं हम, जिन्होंने जबरदस्ती जो है ना अपने आप को अधिनायक बना लिया है, नेता बना लिया है. बट दे आर डूइंग फॉर अस. आर वी ऑन द सेम पेज? अब यदि ये हमारे राजनेता, हमने इसको महाभारत का 5 गांव कहा है, तो हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं
कि साहब ये तो कौरववंशी लोग हैं। आप दुर्योधन का आपको डायलॉग याद नहीं है कि 5 गांव तो बहुत होते हैं, मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो मैंने कहा अपन भी तो कृष्ण भगवान की ही बात मान के चल रहे हैं ना, हम कौन से हम उसको महाभारत कर देंगे। और ये महाभारत कैसा होगा? इसमें कोई लड़ेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, कोई हथियार नहीं चलाएगा, कोई जो है ना बड़े बड़े जो है ना विनाश करने वाले कोई ऐसे नहीं चलेंगे। इसमें क्या चलने वाला है कि इस वर्तमान डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का यूज करके जिन लोगों ने इस लोगों को 100 करोड़ तक पहुंचाया होगा और उसको ऐप के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, लिहाजा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का जो है ना ऑलरेडी जन्म दे दिया है, जो किसी भी राजनीतिक कार्रवाई के लिए नहीं बनी है। यह राजनीतिक पार्टी जो है उनको उनके घर पर टिकट पहुंचा देगी। किनको पहुंचाएगी? जिन्होंने इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया है? महापरिवर्तित भारत के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए, टैक्स मुक्त भारत के लिए, कर्ज मुक्त भारत के लिए, जहां पर उन्हें अपनी बात कहने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर उन्हें उनका सिर फटा होने के बावजूद भी बेइज्जत करके भगा दिया जाता है, ऐसी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेंड वॉलंटियर उनके घर पे एफआईआर दर्ज करेगा। और आज की जनता केवल एफआईआर ना लिखने से परेशान नहीं है, वो झूठी एफआईआर से परेशान है, वो झूठी गवाही से परेशान है। पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो झूठे बयान काट लेती है, क्योंकि नियम कानून सेक्शन जो है ना 160-61 में यही बनाया है कि साला बिना सिग्नेचर के रखना है, तो वो जो चाहे तो लिख ले। तो आज की हमारी पुलिस जानते क्या करती है? क्योंकि जिसका मैं डीजी रहा हूँ, वो कहती है आकांक्षा तुम्हारा नाम आकांक्षा, पिताजी का नाम पता, ये फिर आपसे बयान नहीं लिखवाना है, हमने अपनी थ्योरी के हिसाब से आपका बयान खुद ही लिख लेना है। तो ऐसे फर्जी बयान लिखने वाले फिर विभिन्न चीज़ों से प्रसाद होकर किसको हमें निकालना है, किसको बाहर निकालना है, ये भविष्य में नहीं किया जा सकेगा। ऐसी काल्पनिक विवेचना करने वाले और जो बड़े विद्वान वकील जिनका ठेका यही है कि निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष बनाना, ये 5 चीजें परजरी का कानून के तहत जघन्य अपराध होंगी। इन्हें पकड़ने के लिए 21 टेक्नोलॉजी का इंजन डिजाइन कर लिया गया है, ये एक भाग नहीं पाएंगे। ऐसे परजरी का ऑफेंस करने वाले जेल में सड़ेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मदद करने वालों को 5,000 से लेकर 1 करोड़ का जो है ना धनराशि बांटी जाएगी, जिसे हम रेवेन्यू स्ट्रीम कर रहे हैं। जज महोदय को एक अधिकार तो ये छुड़ा लिया जाएगा, 2 अधिकार छुड़ा लिए जाएंगे। नंबर 1, दे आर सपोज टू गिव द इम्प्रिजनमेंट फॉर ईच सेक्शन। तो आज उनके पास एक बहुत बेकार का अधिकार है कि वो सजा को कॉन्करेंटली चला देते हैं। तो आपने 10 अपराध किए और सब में 1-1 साल की सजा है, तो आपको 1 साल की सजा में 10 के अपराध निपट गए, क्योंकि वो सभी सजाएं कॉन्करेंटली चल रही हैं। नाउ दिस पावर ऑफ द जुडिशरी विल बी टेकन अवे, दे कैन नॉट डू दैट। सेक्शन में क्या अपराध का सजा बन रही है वो डिसाइड आप कर सकते हैं, दैट विल बी कॉन्जिक्यूटिवली। तो आपने 1-1 साल की सजा दी है और 10 अपराध हैं, 10 सेक्शन का अपराध है, तो आपको 10 साल की सजा मिलेगी। दूसरा जो है, जो फाइन है, ये फाइन का पावर विल बी विड्रॉन फ्रॉम द जजेस। फाइन विल बिकम द कैलकुलेटेड फाइन। तो जितना हम दंड बांट देंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा और वो आधा पैसा सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त ने और क्राइम फ्री भारत मिशन ने भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पैदा करने की मैकेनिज्म पैदा की है। तो जब हमने इतनी मैकेनिज्म पैदा कर दी है तो भाई साहब आप हमसे टैक्स क्यों लेंगे? तो हम आपको टैक्स मुक्त भारत दे रहे हैं। कलब्रिक्स अकाउंट से, जिसमें 3 जगह से पैसा टेम्परेरी फ्लो हो रहा है क्योंकि परमानेंटली चाहिए नहीं, इट्स नॉट ए फ्री बी मैकेनिज्म। तो हम आपको कर्ज मुक्त भारत दे रहे हैं। बैंक सब जो है ना बैकएंड पे जो है ना जुड़े हुए हैं, तो किसी को इंडिविजुअल बैंक के पास नहीं जाना है। कलब्रिक्स अकाउंट अपने देगा, वो उसको बैंक को जो देना है नहीं देना है वो उसमें बैकएंड पे होता रहेगा। आपको फ्रंट एंड पर बिना मांगे कलब्रिक्स अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। तो हमने आपको विद सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत दे दिया है, करप्शन फ्री भारत दे दिया है, पेपर करेंसी मुक्त भारत दे दिया है, टैक्स मुक्त भारत दे दिया है, कर्ज मुक्त भारत दे दिया है और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार देके आपको एक अद्भुत भारत दे दिया है। इस अद्भुत भारत के लिए क्या आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं? ये हम आपको परोस करके दे रहे हैं